Hello students, great welcome to my channel. I am Poonam Dua from MN Education Academy of Literature. Today we bring to you a very important topic which the students have been demanding recently because of the lockdown period. They are not able to attend to many classes of IGNOU. So I and my academy are trying to give you best help specifically for MEG 01 and MEG 04. So today's topic is for MEG 04 aspects of language, and the subtopic will be word formation. Please do like, share and subscribe the channel so that you remain updated with the latest literature information. So let us talk in detail about the topic now. This is from block 4 English morphology and it is word formation. This video will be in many parts. In part 1 I'm trying to cover very basic thing, words and morphemes. And one important thing before going further in this video is that please make notes of everything being told in this video. This way only you will be able to help yourself. आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे वर्ड्स को। वर्ड्स इस दुनिया की उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनको सब जानते तो हैं लेकिन डिफ़ाइन नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, रोज़ इस्तेमाल करते हैं, बट स्टिल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाइंड दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इनटू सम डेफिनेशन एंड द सेम गोज़ विद वर्ड्स। वर्ड की अगर ऑफिशियल डेफिनेशन आप एग्ज़ाम में लिखें तो यही लिखिएगा, अ सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ स्पीच और राइटिंग यूज्ड विद अदर्स to form a sentence and typically shown with a space on either side when written or printed. So this is a definition which covers almost every aspect, every characteristics of word. और अगर आप थोड़ी सी और official definition लिखना चाहें तो आप ये लिखिए, in linguistic a word of a spoken language can be defined as the smallest unit of phoneme that can be uttered in isolation. मतलब word एक ऐसा smallest unit है जो अपने आप में meaningful होता है. So words are not the smallest unit of language. The smallest unit of language is morpheme. It is the smallest unit of meaning as well as grammatical function, and words and morphemes are the two lowest levels of structure in the grammar of language. Morphemes को तो अभी हम और पढ़ने वाले हैं. मॉर्फीम्स स्मॉलेस्ट यूनिट हैं एक लैंग्वेज का एंड दे आर कॉमनली क्लासिफाइड एज फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स. धीरे धीरे ये टर्म आपको क्लियर होती चली जाएंगी एंड यू कैन रियली स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स इफ़ यू नो दीज टर्म्स, बिकॉज इन्हीं टर्म्स पर कुछ बड़े टॉपिक्स डिपेंड करते हैं. सो मॉर्फीम का एक ग्रामेटिकल फंक्शन होता है. मॉर्फीम का मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ अभी आपको. जैसे कि वर्ड कैट्स है. कैट्स अपने आप में एक पूरा वर्ड फील होता है हमें, लेकिन कैट्स में जो एस लगाया हमने प्लूरल इंडिकेट करने के लिए, दैट इज़ अ मॉर्फीम एंड दैट इज़ अ बाउंड मॉर्फीम बिकॉज एस की अपने आप में अकेले कोई वैल्यू नहीं है. इट गेट्स अ वैल्यू ओनली व्हेन इट इज़ एडेड टू सम अदर वर्ड. So there are two types of morphemes which are free morpheme and bound morpheme. सबसे पहले बात करते हैं फ्री मॉर्फीम की. फ्री मॉर्फीम इज़ जस्ट अ सिंपल वर्ड दैट हैज़ अ single morpheme or meaning, thus it is free and can occur independently as well. For example, look at the sentence, Mahima wishes to go there. आप यहाँ underlined word go को देखिए. Go is a free morpheme. Go को as a single word use किया जा सकता है. आप दूसरे example की तरफ देखिए, Mahima is a रेगुलर चर्च गोअर. अब गोअर में आप देखिए गो के साथ ई आर लगा दिया गया. ई आर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है. अगर ई आर का मतलब डिफाइन किया जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ जस्ट यू कैन से सफिक्स एडेड टू अ वर्ड. सो दिस इज़ व्हाट वी विल कॉल बाउंड मॉर्फीम. बाउंड मॉर्फीम को अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे. पहले फ्री मॉर्फीम की एक ऑफिशियल डेफिनेशन जान लेते हैं. अ फ्री मॉर्फीम इज़ अ मॉर्फीम दैट
can stand alone as a word, it is also called an unbound morpheme or a freestanding morpheme. A free morpheme is the opposite of bound morpheme, a word element that cannot stand alone as a word. बाउंड मॉर्फीम समझने से पहले लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ फ्री मॉर्फीम. फ्री मॉर्फीम में किसी भी तरीके के नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स या कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है. मैं यहाँ पर नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि गर्ल, हैट, हाउस, फायर. नाउन. वर्ब्स वॉक, स्लीप, से, ईट. एडजेक्टिव्स क्विक, नाइस, फन, बिग. बाउंड मॉर्फीम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं. बाउंड मॉर्फीम अपीयर्स only as part of words, always in conjunction or in combination with a root. root क्या होता है वो आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे. प्लीज़ कीप एन आई ऑन दिस चैनल. आई विल डिस्क्राइब ऑल द बेसिक्स ऑफ aspects of language. So bound morpheme हमेशा root के combination में ही आ सकते हैं और sometimes with another bound morphemes as well. For example, unappears. अब आप वर्ड देखिए unappears, इसमें दो बाउंड मॉर्फीम्स हैं, एक तो अन और एक एस जो कि अपीयर के बाद लगा है. ओके, दोनों ही ना अन का अपने आप में कुछ मीनिंग है ना एस का अपने आप में मीनिंग है, बट दे मेक सेंस व्हेन दे आर एडेड टू दिस बेसिक वर्ड अपीयर. अन के ही और एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं अनप्लेजेंट, अनसेफ, अनडन, undo and many more, whatever you can recall. By contrast to a free morpheme, a bound morpheme is used with a free morpheme to construct a complete word as it cannot stand independently. तो this is a perfect definition कि bound morpheme अपने आप में अकेला कुछ भी नहीं है. It cannot stand alone independently. Let us understand the same with one more example. For example, in the sentence, आप पूरा sentence देखिए लिखा हुआ the trader wants to sell पेंटिंग. अब आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिए इन अंडरलाइन वर्ड्स ट्रेडर, वॉन्ट्स और पेंटिंग पर. तो ट्रेडर में बाउंड मॉर्फीम क्या है? ई आर. वॉन्ट्स में बाउंड मॉर्फीम है एस और पेंटिंग में बाउंड मॉर्फीम है आई एन जी. तो दिस ई आर, दिस एस, दिस आई एन जी, दे कैनॉट स्टैंड अलोन ऑन देयर ओन. दे नीड फ्री मॉर्फीम्स ऑफ ट्रेड, वॉन्ट एंड पेंट टू हैव अ मीनिंग. फ्री मॉर्फीम के एग्जाम्पल में मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के. ऐसी कोई भी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच विच कैन स्टैंड अलोन इज अ फ्री मॉर्फीम. उसी तरीके से उसी कॉन्ट्रास्ट में बाउंड मॉर्फीम इन्हीं सब पार्ट ऑफ स्पीचेस को मॉडिफाई करता है, किसी नाउन को, किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को. सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं नाउन का. एक वर्ड है कैट. कैट बिकम्स कैट्स आफ्टर एडिंग अ मॉडिफायर एस टू इट और ये मॉडिफायर बाउंड मॉर्फीम है. सेम वे इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव. जैसे हम टॉल के सामने ई आर या ई एस टी लगा दें तो इट बिकम्स टॉलर और टॉलेस्ट. नेक्स्ट इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब एज वेल. जैसे किल एक बेसिक वर्ब है, जब हम किल के सामने ई डी, आई एन जी ऐसे वर्ड्स लगा देते हैं तो वर्ब मॉडिफाई हो जाती है. या ईट का अगर ईटन बना देते हैं तो इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी ई डी, इट कैन बी आई एन जी, इट कैन बी ई एन और एट टाइम्स इवन दे आर इरेगुलर वर्ब्स एज वेल. सो बाउंड मॉर्फीम क्या करता है कि एक वर्ब का, नाउन का, एडजेक्टिव का या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के मतलब को मॉडिफाई कर देता है बाय एडिंग समथिंग टू इट. एंड वो वर्ड जो ऐड किया जाता है, आई शुड नॉट से वर्ड एक्चुअली, वो मॉर्फीम जो ऐड किया जाता है वो अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होता. I hope the video has been helpful for you. I will try to upload the next part soon. Please keep looking at this space. The next video will be related to affix, suffix and prefix. Thanks a lot for watching my videos and do share, like and subscribe. Best of luck for your exams.